السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ ویلکم جی، خوش آمدید آپ کو آج کے سبق کے لیے۔ الحمدللہ ہم نے علم المعانی کو شروع کیا، اور علم المعانی کے 8 چیپٹرز ہیں۔ 8 چیپٹرز میں پہلا چیپٹر ہے الخبر والانشاء، اور الخبر والانشاء میں سب سے پہلے ہم نے الخبر یعنی اس کے بارے میں جاننا شروع کیا۔ کیوں اس علم المعانی کو الخبر والانشاء سے شروع کیا گیا؟ میں بار بار ہر لیکچر میں یہ بات دوبارہ کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان لیکچرز کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہے، اور ان کو نہ سمجھنے کا نقصان کیا ہے، کہ انہی کی بنیاد پر آگے آنے والے 7 لیکچر چلیں گے۔ ان 7 لیکچرز کی بنیاد یہی وہ باتیں ہیں جو ہم اس پہلے چیپٹر میں کر رہے ہیں، الخبر والانشاء۔ اور الخبر والانشاء کے 2 حصے ہیں، ایک الخبر، دوسرا الانشاء۔ دونوں کی الگ الگ باتیں ہیں۔ ابھی ہم الخبر کو مکمل کر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہمارا یوں سمجھ لیجئے الخبر کے بارے میں سیکنڈ لاسٹ درس ہوگا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آئے گا اس میں الخبر کا ٹاپک مکمل ہو جائے گا۔ اس کے اندر ہم نے الخبر میں خبر کی وجوہات دیکھیں، کہ پہلے تو خبر کی اقسام دیکھیں، ان کی اغراض دیکھیں، اس کے اندر جو جملے ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں، ان جملوں کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ اب فائنلی ہم اس سٹیج پر پہنچے ہیں کہ الجملۃ الخبریہ جب ہم اس کو لے کر آتے ہیں تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یعنی اس کو کیسے لایا جاتا ہے۔ آج ہم وہ انداز دیکھیں گے، ان چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور قرآن مجید میں یہ کثرت سے موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے 3 منظر پیش کرنے لگا ہوں۔ ان 3 منظر کو غور سے سمجھنا ہے، اسی کے اندر یہ پوری بات سمجھ آ جائے گی۔ کتاب میں آپ ہیڈنگ دیکھیں گے، اضرب الخبر۔ اضرب بیسیکلی اس کا معنی انواع ہے، یعنی ضرب نوع، اضرب نوع، انواع۔ سو اضرب الخبر یعنی خبر کی انواع، اقسام، خبر کی قسمیں۔ سو اس کے اندر پہلا سینیریو ہے، مثلا میں متکلم ہوں اور میرے سامنے مخاطب ہے۔ یہ پوری جو بات ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے متکلم کی ذہانت کے اوپر اور مخاطب کی کنڈیشن کے اوپر۔ متکلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ مخاطب کے حالات کے حساب سے جملہ خبریہ بولے گا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ القاء الخبر یعنی غرض من القاء الخبر کیا ہوتا ہے، کیا اغراض ہوتے ہیں؟ 2 بیسیکلی 2 ہوتے ہیں۔ کیا کہ متکلم نے مخاطب کو کوئی فائدہ پہنچانا ہے، یا متکلم نے مخاطب کو یہ بتانا ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے، جو معاملہ پیش آیا وہ اس کو جانتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ 2 جو مقاصد ہے جس کو ہم نے فائدۃ الخبر اور لازم الفائدہ کہا تھا۔ اب اس پوائنٹ پر کیا ہو رہا ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی پیش کر چکا ہوں؟ متکلم کہہ رہا ہے اخوک قادم، تمہارا بھائی آنے والا ہے۔ اب اس پر اگر غور کریں تو اس جملے میں کسی قسم کی کوئی تاکید نہیں ڈالی گئی، یعنی ان اخاک قادم یا ان اخاک لقادم، واللہ ان اخاک لقادم، ایسی کوئی بات نہیں۔ سمپل جملہ بولا گیا، اخوک قادم، تمہارا بھائی آنے والا ہے۔ اب اس میں کیا ہے، جو مخاطب ہے وہ آگے سے کہتا ہے الحمدللہ، یعنی اچھی بات ہے خبر۔ یہ الحمدللہ اس نے کیوں کہا؟ یعنی اس نے متکلم کی بات کی تصدیق کر دی۔ متکلم جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہوگا، وہ اس کو متکلم پہ اعتماد تھا۔ بہرحال یہاں پر جو مقصد ہے بتانے کا کہ متکلم نے جملہ بغیر کسی تاکید کے بولا۔ کیوں؟ کیونکہ مخاطب خالی الذہن تھا۔ خالی الذہن سے مراد کیا ہے؟ کہ مخاطب کے پاس اس بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی۔ اس نے جو معلومات اسے ملی، اخوک قادم، اس نے اس کی تصدیق کر دی۔ اس لیے اس جملے میں کسی قسم کی تاکید کی ضرورت نہیں تھی، یعنی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ یہاں تاکید ڈالی جائے۔ انشاءاللہ اگلے سلائیڈ پر ہم اس کو باقاعدہ اس کا نام کے ساتھ اس کو سمجھ لیں گے کہ جو اضرب الخبر میں اسے کیا نام دیا جاتا ہے۔ دوسرا سینیریو ہے، متکلم مخاطب کو کہتا ہے اخوک قادم، مخاطب کہتا ہے حقاً، یعنی اب یہاں مخاطب متردد ہے، یعنی واقعی مخاطب کو ڈاؤٹ ہے کہ شاید ایسا نہ ہو۔ تو اس کے ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے متکلم اگلا سٹیپ لیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ان اخاک قادم۔ یہ متکلم کیوں یہاں پر کہہ رہا ہے ان اخاک قادم؟ اس لیے کہ متکلم نے مخاطب میں تردد محسوس کیا، کہ مخاطب کو کوئی شک ہے، اسے یقین نہیں آیا بات کا، اس لیے اب متکلم کو ایک تاکید لانی پڑی۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ کیونکہ مخاطب متردد تھا، یعنی جس کو خبر دی جا رہی ہے
اس کو خبر کو قبول کرنے میں تردد تھا، شک تھا، کو ڈاؤٹ تھا، اس کے ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے سنگل تاکید لائی گئی، ان اخا کا قادم۔ تھرڈ سینیریو، متکلم کہتا ہے اخو کا قادم، مخاطب کہتا ہے لا، مخاطب کیا کہہ رہا ہے؟ منع کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب متکلم نے کیا کیا؟ اس نے ان اخاک لا قادم، اس نے دو تاکیدیں ڈال دی۔ کیوں دو تاکیدیں ڈالی؟ کیونکہ مخاطب انکار کر چکا، کیونکہ مخاطب منکر تھا، یعنی مخاطب نے انکار کر دیا انفارمیشن کو ایکسپٹ کرنے سے۔ تو جو متکلم ہے چونکہ وہ شور ہے، اس لیے اس نے اپنے مخاطب کے اکارڈنگلی، اس کے سچویشن کے لحاظ سے اس کے اکارڈنگلی ڈبل تاکید ڈال دی، اور اس نے کہا ان اخاک لا قادم۔ سو یہ تین اقسام ہوتی ہیں، تین انواع ہیں، تین کنڈیشنز ہیں، تین سچویشنز ہیں۔ پہلی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ہم جب کسی کو خبر دیں، کسی کو کوئی بات کریں تو بنا تاکید کے کریں گے، خالی۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے والا، یہ متکلم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اسے پتا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کی کنڈیشن کیا ہے، تو یہ وہی ذہانت کی بات ہے۔ سو قرآن مجید میں چونکہ تاکید کے ساتھ، سنگل تاکید کے ساتھ کلام بھی موجود ہے، ڈبل کے ساتھ بھی موجود ہے، اور بنا تاکید کے بھی موجود ہے، تو یقیناً ہر ایک کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ یہاں تک میں آپ کے ذہن میں ایک نقشہ کام کرنے میں امید ہے باذن اللہ کامیاب ہوا ہوں۔ اب ہم اس کو ذرا ٹیکنیکلی اکارڈنگ ٹو دا بک ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ سو دروس البلاغہ کتاب میں جو شیخ ہیں وہ تعریف لکھتے ہیں، حیث کان قصد المخبر بخبرہ، یعنی مخبر کا اپنی خبر کو دینے کا جو مقصد تھا، جو اس کا قصد تھا، وہ کیا تھا؟ افادت المخاطبی، مخاطب کو فائدہ پہنچانا۔ ینبغی، یہ ریکمینڈڈ ہے، ان یقتصر من الکلام علی قدر الحاجہ، یعنی وہ ضرورت کے حساب سے اپنے کلام میں اقتصار پیدا کرے، یعنی بیسیکلی اصلاً یہ ہے کہ کلام مختصر ہو، کلام مختصر اور سادہ ہو، حذرا من اللغو، یعنی لغو سے بچتے ہوئے۔ سو یہاں پر ان کا مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی کلام سادہ ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی تاکید نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن تاکید کیوں ڈالی جائے گی؟ تو اصل میں کیا ہے؟ افادت المخاطب ہے، مخاطب کو فائدہ پہنچانا ہے، تو اس کے حساب سے ہوگا۔ اس کو اگر بغیر تاکید کے فائدہ پہنچ جاتا ہے تو کلام میں بغیر تاکید کے کلام کیا جائے گا، لیکن اگر مخاطب کو سنگل تاکید سے فائدہ پہنچے گا تو سنگل تاکید ڈالی جائے گی، اور اگر اس کو سنگل سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر ڈبل تاکید ڈالی جائے گی۔ مثلا کتاب میں ہی وہ اپنی وضاحت کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں فَإِن كَانَ الْمُخَاطَبُ خَالِيَ الذِّهْنِ مِنَ الْحُكْمِ أُلْقِيَ إِلَيْهِ الْخَبَرُ مُجَرَّدًا عَنِ التَّأْكِيدِ، یعنی ان كَانَ الْمُخَاطَبُ، اگر مخاطب خالی الذہن من الحکم، یعنی اگر مخاطب خالی الذہن ہے، یعنی آپ اس کو جو انفارمیشن دیں گے اس کو قبول کر لے گا، کیونکہ یا تو وہ آپ پر ٹرسٹ کرتا ہے یا اسے پہلے سے اس بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اس لیے آپ کی دی گئی معلومات کو وہ قبول کر لے گا۔ سو القی الیہ الخبر، اس کے یعنی خبر اس کو جو دی جائے گی وہ مجردن عن التاکید، تاکید سے خالی ہوگی، جیسا کہ اخو کا قادم، سمپل۔ اس سٹیٹس کو الضرب الاول، اس کو کہتے ہیں ابتدائی، یعنی اس کو کہتے ہیں ابتدائی کلام۔ اور جو دوسری سٹیج ہے وہ کیا ہے؟ وَإِن كَانَ مُتَرَدِّدًا فِيهِ، یعنی اگر وہ اس حکم کے بارے میں متردد ہے، طالباً لمعرفتہ، وہ اس کی معرفت جاننا چاہتا ہے، یعنی اس کی مزید ڈیٹیل جاننا چاہتا ہے، حسن توکیدہ، اس کی جو توکید یا تاکید ہے وہ پسندیدہ ہے۔ ان اخاک قادم، الضرب الثانی یسمى طلبیا، اس کو طلبی کہا جاتا ہے۔ تو پہلے سٹیج کو ابتدائی، دوسرے سٹیج کو طلبی کہا جاتا ہے۔ تیسری سٹیج وَإِن كَانَ مُنْكِرًا وَجَبَ تَوْكِيدُهُ بِمُؤَكِّدٍ أَوْ بِمُؤَكِّدَيْنِ، یعنی اگر منکر ہے، مخاطب بات قبول نہیں کر رہا، تو اب توکید لانا واجب ہے، ایک یا دو توکیدیں، یا پھر اس سے بھی زیادہ، حسب درجۃ الانکاری، اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، یعنی جو سامنے سے آدمی انکار کر رہا ہے اس کی ڈھٹائی کے مطابق، وہ کتنا ڈھیٹ ہے، کتنا سخت ہے، کتنی اس کو باتیں سمجھ نہیں آ رہی، اس کو کتنا زور ڈالنا پڑ رہا ہے، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مثلا
इन अखाका कादिमुन इन्नहु लकादिमुन वल्लाहि इन्नहु लकादिमुन। अब ये स्टेजेस हैं, और इसको अद्दर्ब सालिस कहा जाता है इनकारी। यानी अगर आपको कोई जुमला मिले उसमें एक से ज्यादा ताकीद हो तो इसका मतलब है कि जुमला इनकारी है, कंडीशन इनकारी थी। अगर आपको एक ताकीद मिले तो इसका मतलब है जुमला तलबी है। और अगर आपको कोई भी ताकीद का इंस्ट्रूमेंट ना मिले तो इसका मतलब कलाम इब्तिदाई था। मैं इंशाअल्लाह आपको इसको मिसालों के जरिए भी वाज़ेह कर दूंगा। अब किताब में लिखी स्टेटमेंट को हम एक दफा फिर देख लेते हैं। क्या कहते हैं? फ़इन कानल मुखातबु खाली अज़्ज़हन मिनल हुक्मी उल्क़िया इलैहिल ख़बरु, अगर मुखातब खाली ज़हन है हुक्म के बारे में, यानी जो उसको खबर दी जाने लगी है, तो उस सूरत में उसके ऊपर जो खबर का इल्का होगा वो मुजर्रदन अन ताकीदी, उस पर ताकीद नहीं लाई जाएगी, सादी बात कर दी जाएगी। वह इनका न मुतरद्दिदन फीही, और अगर उसको उसमें तरद्दुद होगा, क्यों तरद्दुद होगा? तालिबन लिमारिफतिही, वो उसकी मजीद इंफॉर्मेशन जानना चाहता है, तो हसुना तौकीदुहु, सो उस पर ताकीद डालना पसंदीदा है। व इन खाना मुनकिरन वाजबा तौकीदुहु बिमुअक्किदिन औ मुअक्किदैन औ अक्सर हसब दरजतिल इनकारी, और अगर वो मुनकिर है तो फिर ये वाजिब है कि तौकीदुहु, एक ताकीद डाली जाए, दो डाली जाए या ज्यादा। सो पहली कंडीशन को कहा जाता है, इसको कहा जाता है इब्तिदाई, दूसरी को कहा जाता है तलबी, और तीसरी को कहा जाता है इनकारी। ये कंडीशंस हैं। तो अब हमारे सामने जब भी जुमला आएगा तो हम उसको इसी तरह उसकी तकसीम करेंगे, जो मैं आपके सामने अभी एग्जाम्पल्स के जरिए लाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान मजीद पर में इसकी एप्लीकेशन करते हुए अभी काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि उसको बड़े गौर से सियाक सबाक देख कर फैसला करना होगा। हम हर जगह, हम अभी आपके सामने मैं एग्जाम्पल के ज़रिए हल करने की कोशिश करूंगा कि इसको हमने हल कैसे करना है, लेकिन कुरान मजीद में इस पोजीशन पर लाना कि यहां पर दो ताकीदें लाई गई हैं तो लाजमी बात है कि सामने वाला इनकारी था, यह जरूरी नहीं है। उसकी वजह आपको भी सामने आ जाएगी। मसलन पहली आयत है, ये बहुत प्यारी एग्जांपल्स हैं, हमें तकरीबन बलागत की हर किताब में ये एग्जांपल तौकीद के टॉपिक में इस्तेमाल की जाती है। मसलन आयत है सूरह यासीन की, इद अरसलना इलैहिम इत्नैनी फकज़्ज़बूहुमा फअज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फक़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। यानी अल्लाह ताला ने जो दो अंबिया भेजे थे उनको उस कौम ने उनका इनकार कर दिया, उनको झुटला दिया, तो अल्लाह फरमा रहे हैं फिर हमने एक और तीसरा भेजा, उसके जरिए हमने यानी जो पहले से दो मौजूद थे उनको मजीद कुव्वत अता की। तो फ़क़ालू, उन्होंने कहा, यानी उन अंबिया ने कहा, इन्ना इलैकुम मुरसलून, हम तुम सब की तरफ भेजे गए हैं। अब ये इन्ना इस्तेमाल किया गया जुमला खबरिया, और स्टेटस क्या है खबर का? तलबी, यानी ये तलबी खबर है। क्यों तलबी है? क्योंकि इसमें एक ताकीद मौजूद है, सिंगल, इसमें एक ताकीद मौजूद है। मुस्नद क्या है? मुरसलून, मुस्नद इलैहि क्या है? ना ज़मीर जो इस्मु इन्ना है। अब यहां पर गौर करें कि दो अंबिया पहले आए, कौम ने उनको झुटला दिया, अल्लाह ताला ने तीसरा भेजा। जब कौम ने उनको झुटलाया और तीसरा आ गया, अब जब तीसरे नबी को भेजा गया तो इस वक्त बात मुतरद्दिद है। मुतरद्दिद क्यों हम कंडीशन में ले रहे हैं? इसलिए कि अभी फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि तीसरा नबी आ चुका है। अगर तीसरे नबी ना आए होते तो फिर बात इनकारी की तरफ चली जाती। अभी बात इनकारी की तरफ अब जाएगी। क्या वो तीन नबी आए तो वो तीनों का इनकार कर दिया गया। वमा, क्या कहा उन्होंने? वमा अनज़ल अर्रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। उन्होंने क्या कह दिया कि रहमान ने कुछ नाजिल नहीं किया तुम सिवाय, नहीं सिवाय इसके कि तुम नाउज़ुबिल्लाह झूठ बोल रहे हो। कालू, अंबिया ने जवाब दिया, रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून। ताकीद, डबल ताकीद, जुमला खबरिया, इनकारी कंडीशन आ गई, क्योंकि अब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। वो मा अंजल, नफी कर दी, मा अंजल अर्रहमानु मिन शैइन, मिन भी यहां ज्यादा इस्तेमाल हुआ। इन अंतुम इल्ला, हसर का मफहूम डाल दिया। तो जितना उनका इनकार शदीद था, उनको जवाब भी उसी इनकार से दिया अंबिया ने। कैसे? यहां पे सिर्फ बजाहिर लफ्जी दो ताकीदें और भी हैं, वो क्या है?
रब्बुना यअलमु, ये तकरीबन बमुकाबला कसम है कि अंबिया ने कसम उठाकर कह दिया, इन्ना इलैकुम लमुरसलून। असलन यहां पर चार ताकीदें मौजूद हैं। वो कौन सी? एक इन्ना, दूसरी लाम, तीसरा जुमला इस्मिया, चौथी कसम। चार ताकीदें डाली गई। रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून। जिस अंदाज में कुफार ने इनकार किया, अंबिया ने उससे बढ़कर उनको ताकीद के साथ जवाब दिया कि यकीनन हमारा रब जानता है कि यकीनन हम सिर्फ तुम्हारी तरफ इन्ना इलैकुम लमुरसलून, यकीनन तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। सो इन्ना और लाम दो मुअक्किदात, असल में चार हैं। मुरसिलून मुस्नद और ना मुस्नद इलै। अब आते हैं अगली आयत की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। जुमला खबरिया इब्तिदाई, ये कलाम इब्तिदाई है, किसी किस्म की कोई ताकीद मौजूद नहीं है। वेरी सिंपल, एक्सेप्टेड। सो मुअक्कदात से खाली है चूंकि कलाम इब्तिदाई है। मुस्नद क्या है? लिल्लाहि शिबहु जुमला, और मुस्नद इलैहि है अल्हम्दु। अगली आयत है इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। जुमला खबरिया है, नौउल खबर इनकारी है, और मुअक्किदात कितनी हैं? दो, इन्ना और लाम। और मुस्नद क्या है? समीउद दुआ, और मुस्नद इलैहि है रब्बी। अब ये आयत मुबारका जहां पर लिखी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला मुखातब इनकारी था, ऐसा नहीं है। यहां पर बसा औकात देखें, ये जो ताकीद इस्तेमाल की जाती है, ये जो हमने अभी स्टडी किया है, तलबी, इनकारी, दो कंडीशंस हैं। लेकिन उसके अलावा भी ताकीद डाली जाती है। उसके दो तीन मकासद होते हैं। एक ये कि सामने वाला इनकारी तो नहीं है, लेकिन उसको उस पोजीशन पर समझ लिया जाए कि गोया कि ये उस कंडीशन में है। इंशाअल्लाह हम इसकी मजीद तफसील भी देखेंगे जब हम मुक्कदात की अकसाम को पढ़ेंगे। अगले सबक में हम जो ताकीद है उनकी अकसाम को देखेंगे, वहां पर इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 10-11 अकसाम हैं, 10-11 तरह की यानी ताकीद के अंदाज हैं। उन अंदाज को हम देखेंगे, और उसकी जब एग्जांपल्स आएंगी उसमें मजीद चीजें भी आएंगी, फिर वहां भी मैं आपके साथ ये शेयर करता चलूंगा कि यहां ताकीद का क्या मकसद था। ये हम हल तो इस तरह से ही करेंगे, इन रब्बी लसमी उद्दुआ, क्योंकि ये नौइयत क्या है खबर की? इनकारी है। लेकिन क्या एक्चुअली में इनकार था कि जिसकी वजह से ये कहा गया? तो ये आपको हमें कुरान मजीद में सियाक व सबाक भी देखना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने यहां क्यों इस्तेमाल किया, उसकी क्या वजह थी, क्या सबब था। तो ये वही चीज है कि बेसिकली इल्मुल बलागा में, जैसे गुज़िश्ता सबक में मैंने ये बात आपसे शेयर की थी कि इसमें नहव की तरह उसूल ज़वाबित हैं तो सही, लेकिन ये अक्सर उसूल ज़वाबित से बाहर भी बात निकलती है, वो थोड़ी अगले स्टेप्स में चली जाती है। तो चूंकि दुरूसुल बलागा की किताब एक बेसिक किताब है, इसलिए वो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं गए हैं, तो इसका मतलब ज्यादा डिटेल भी मौजूद है। फिलहाल हम यानी चूंकि आप और मैं हम इब्तदाई तालिब इल्म हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर ज्यादा बर्डन आए। रिलैक्स, टेक इट इजी। इसका मतलब और भी मालूमात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमें मिलेंगी। जैसे कि आयत मुबारक है, फ़अौजस फ़ी नफ्सिही खीफ़तन मूसा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नफ्स में एक खौफ महसूस किया। कुलना ला तखफ, हमने उन्हें फरमाया मत डरो, इन्नका अंतल आला। अब देखें, इन्ना की ताकीद और अंता ज़मीर फसल, दो ताकीदें हो गई। कलाम क्या हो गया? इनकारी। और मुसनद क्या है? आला, और मुसनद इलैहि है काफ ज़मीर। अब जरा गौर करें, क्या यहां मूसा अलैहिस्सलाम वाकईतन इनकार कर चुके थे कि जो आसा फेंका जा रहा है और उसकी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम को नाउजुबिल्लाह शिकस्त हो जाएगी, और जो कंडीशन पेश आ गई है, क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं था। असल में वो जो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जी में एक खौफ महसूस किया था, उस खौफ के जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम, हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकार नहीं किया, लेकिन उनकी बज़ाहिर कंडीशन ऐसी पैदा हो गई थी जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डबल ताकीद इस्तेमाल की। तो अब वही बात जो मैं भी आपसे कर रहा था, इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। तो कंडीशन यानी सामने वाला, अब यहां पर मूसा अलैहिस्सलाम इनकारी नहीं है कि वो कह चुके हो कि मैं तो शिकस्त खाने वाला हूं, नहीं। लेकिन वो जो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कैफियत तारी हुई थी, उस कैफियत के जवाब में ये इस्तेमाल हुआ, इन्नका अंतल आला। अब ये वही चीज जो मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूं कि कुरान मजीद की तफसीर बड़ी क्रिटिकल है।
यहां पर अब क्योंकि इल्मुल बलागा के तहत इन्ना और अंता डबल ताकीद है, ये इनकार की कंडीशन है। अब मुफस्सर का काम है कि वो सामे को क्लियर करे कि भाई यहां पर अब एक इल्मुल बलागा का आदमी आएगा, वो कहेगा आपने पढ़ाया है कि जी इल्मुल बलागा में जो कलाम इनकारी होता है उस पर डबल ताकीद आती है। तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम यहां पर अपनी फतह शिकस्त का ऐलान कर चुके थे, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली दी डबल ताकीद के जरिए, हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने तो कोई इनकार नहीं किया था। तो अब मुफस्सिर को अपने तफसीरी इल्म के जरिए उसे साबित करना होगा, उसे समझाना होगा। तो ये कौन करेगा? वही जिसके पास बलागत का गहरा इल्म होगा, वो समझा देगा कि भाई ठीक है, इल्मुल बलागा में दो ताकीदें इनकार के लिए आती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मुखातब लाजमी तौर पर मुनकिर हो, बल्कि ये मुतकल्लिम के ऊपर है कि वो उसकी कंडीशन को समझ रहा है कि गोया कि ये इस फेज में चला गया है या जाने वाला है या उस पर ऐसे असरात जाहिर हो गए हैं। अगली आयत है वह इदा कील लहुम। अब देखें यहां पर क्या हुआ, सुबहान अल्लाह। जितना इल्मुल बलागा इंसान को कुरान मजीद के अंदर सोचने पर और उसके हैरान करता है, इल्मुल नहव तो कुछ भी नहीं है उस मुकाबले में। सो इदा कील लहुम ला तुफसिदू फिल अर्दी, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद बर्पा मत करो? कालू, कहते हैं, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। तो कुफार ने क्या इस्तेमाल किया? हसर का मफहूम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको ताकीदों की बौछार कर दी उनके ऊपर। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना, कितनी ताकीदें आ गई। अला मुअक्कद नंबर एक, इन्ना मुअक्कद नंबर दो, हुम मुअक्कद नंबर तीन, अल मुफसिदूना अल तारीफ खबर पर मुअक्कद नंबर चार, और नंबर पांच जुमला इसमिया। पांच ताकीदें डाल दी अल्लाह ताला ने। यूं समझे अल्लाह ताला ने बौछार कर दी उनके ऊपर ताकीद की। अला इन्ना हुम हुम अल मुफसिदूना, खबरिया जुमला इनकारी, अला इन्ना हुम लाम और जुमला इसमिया, मुस्नद अल मुफसिदूना मुस्नद इलै हुम। अगली एग्जांपल है इन दीन युस्रुन, जुमला खबरिया तलबी। तलबी कैसे? यहां पर चूंकि एक ताकीद इस्तेमाल हुई है, मुस्नद युस्रुन और मुस्नद इलै अद्दीन। अभी इन जो हमने एग्जांपल्स की हैं इसमें अगरादुल खबर भी हम स्टडी कर सकते हैं। अगराजुल खबर क्या था? फायदातुल खबर या लाजिमुल फायदा। तवालत के बायस उसको मैंने स्किप किया है। और हम ये भी कर सकते हैं कि अब इसमें मजीद जो दो चीजें हमें और हैं, एक वो अगरादुल खबर, और तीसरी चीज क्या होगा जिसमें हमने ये बताना है कि इन्ना इलैकुम मुरसलून, ये जुमला इस्मिया है। और जुमला इस्मिया में क्या है? हुदूस है या सुबूत है या इस्तिमरार है या दवाम है या तजद्दुद है। तो ये चीजें भी देखनी होती हैं। सो इंशाअल्लाह वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे कि जब हम इस ये जो टॉपिक है हमारा अल खबर का, इसको मुकम्मल कर लें, तो उसके बाद एक ऐसा लेक्चर तैयार किया जाए जिसमें सिर्फ इसी तरह से प्रैक्टिस हो और हम एक एक को हर पहलू से उसकी ज़रा हम मश्क करें, तो इंशाअल्लाह उसकी भी कोशिश की जाएगी। कुछ और एग्जांपल्स, जैसा कि मिसाल है, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला मुखातिब हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब हैं। खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? इन्न सलातक सकनुन लहुम। अब ये जुमला क्या है? खबरिया। नौउल खबर क्या है? तलबी। तलबी क्यों है? कि सिंगल ताकीद आ चुकी है। और मुस्नद क्या है? सकनुन। और मुस्नद इलैहि क्या है? सलातु का। यानी आपकी जो दुआ है उनके लिए सकीनत का बायस बनेगी। अब क्या रसूलुल्लाह, अब हमने क्या पढ़ा है कि तलबी किस लिए होता है? मुतरद्दिद के लिए होता है ना। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह यहाँ मुतरद्दिद थे? नहीं, मुतरद्दिद नहीं थे। जैसा कि हमने डेफिनेशन में एक बात पढ़ी थी कि तालबन, तालबन लिमारिफती, कि मुतरद्दिद क्यों है? तालबन लिमारिफती, कि यानी मारिफत जानने के लिए, मजीद डिटेल जानने के लिए। तो यहां मजीद डिटेल क्या हो सकती है? मसलन खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन, कि उनके मालों में से सदका के तौर पे कुछ लें। तो ताहिरुहुम, वो उनको पाक करेगा। वो तुज़क्कीहिम, वो उनका तज़किया करेगा। वसल्ली अलैहिम, वसल्ली अलैहिम, और आप उनके लिए क्या है? दुआ करें। तो यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल में आ सकता है ना कि कैसे, हाउ तालिबन लिमारिफा, कैसे, यानी कैसे वो दुआ क्या फायदा देगी। तो फिर अल्लाह ताला ने
इन्ना के साथ जवाब अता फरमा दिया, इन सलातक सकन लहुम, कि आपकी जो जो दुआ है उनके लिए वो सकीनत का बायस बनेगी। जैसे कि एक और आयत है, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीमुन। खबरिया, तलबी, इन्न मुअक्कद, शैउन अज़ीमुन मुस्नद, और ज़लज़लतस्साअति मुस्नदुन इलैहि। अब यहाँ देखिए, इन्ना क्या मुतरद्दिद की बात थी? नहीं, यहाँ मुतरद्दिद का मामला नहीं है। यहाँ यानी या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम, ये जुमला इंशाइया है, ऐ लोगो अल्लाह अपने रब से डरो, इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। यहाँ पर बेसिकली तक़वियतुल माना है, तक़वियतुल माना यानी बेसिकली मीनिंग को कुव्वत बख्शने के लिए आया है। सो वही चीज कि हमें सियाको सबाक में फैसला करना होगा कि वाकई ही यहां वो स्टेज थी कि यहां पर इनकार था, या वो स्टेज थी कि यहां पर तरद्दुद था, और क्या और वजूहात हो सकती हैं। सो ये वही चीज है, तक़वियतुल माना। एक और आयत है, मसलन अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया, वस्नइल फुल्क बिअयुनिना व वहीना वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू। यानी वस्नइल फुल्क, आप कश्ती बनाइए हमारी आंखों के सामने हमारे वही के तहत, और जो लोग जिन्होंने जुल्म किया उसके बारे में आप हमसे कोई खिताब न कीजिएगा। आगे जवाब मजीद आ रहे, इन्नहुम मुगरकून, यकीनन वो गर्क किए जाने वाले हैं। अब गौर करें, बेसिकली ये तलब ही है, और तलबी क्या होता है? मुतरद्दिद, यानी आदमी मुतरद्दिद हो। अब यहाँ पर यहाँ नूह अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह मुतरद्दिद थे? नहीं, मुतरद्दिद नहीं थे। क्यों? गौर करें, अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि आप कश्ती बनाइए हमारी निगाहों के सामने हमारी वही के तहत, और आप जिन्होंने जुल्म किया है उनके बारे में हमसे कोई खिताब ना कीजिएगा। तो यहां पर नूह अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल पैदा हो सकता था कि फिर उन जालिमों का होगा क्या, वट विल हैपन, तलबन लिमारिफती। ज़हन में आ सकता है ना कि ठीक है, मैं तो उनके बारे में बात नहीं करूंगा, तो नतीजा क्या निकलेगा, उनका होना क्या है, उनका बनना क्या है, यानी कि मुतरद्दिद हैं। अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया, इन्नहुम मुगरकून, वो गर्क किए जाने वाले हैं। सो ये अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आपके सामने आज एक नई चीज आई जिसको आप नहव में बहुत पढ़े हैं, इन्ना आ गया, लाम आ गया, और जुमला उसमें मजीद इंशाअल्लाह अभी हम 10-11 मुअक्किदात अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तो आपको और फायदा होगा, और चीज समझ आएगी। ये टॉपिक अगले अगले सबक में फिर हम इसी तरह से दोहरा रहे होंगे। मसलन आज जो हमने स्टडी किया उसमें एक कलाम इब्तदाई होता है। इब्तदाई कलाम किसे कहते हैं? यानी जिसमें किसी किस्म की कोई ताकीद ना हो। वो क्यों होता है? कि सामने वाले को ताकीद की जरूरत ही नहीं है, और असल यही है कि बिना ताकीद किया जाए। फिर कलाम तलबी होता है। तलबी क्यों होता है? जब मुखातब मुतरद्दिद हो, जब मुखातब मुखातब मुतरद्दिद हो। फिर कलाम इनकारी होता है। कब होता है? जब उस पर दो ताकीदें आ जाएं, उस दो या उससे ज्यादा, तो कलाम इनकारी होता है। और उस सूरत में मतलब है कि सामना जो मुखातिब है वो इनकार कर चुका है। सो आज की पूरी स्टोरी का लुब्ब लुबाब ये है कि अब हमने पहले खबर की कंडीशंस को देखा, फिर उसके अगराज को देखा, आज हमने उसकी कैफियत को देखा कि आखिर जब जुमला खबरिया पेश किया जाता है तो क्यों किया जाता है। इसमें जुमला फेलिया भी दाखिल है। हमने एग्जाम्पल्स में मोस्टली फोकस किया है जुमला इसमिया पर, इसमें जुमला फेलिया भी दाखिल है, जो कि अगले सबक में इंशाल्लाह आपके सामने जब एग्जाम्पल्स आएंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ताकीद तो जुमला फेलिया में भी होती है ना। तो वो यहाँ सिर्फ हमने समझने के लिए उसको उन उन एग्जाम्पल्स को अवॉइड किया है, चूंकि अगले लेक्चर में वो सब आने वाली हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, फजज़ाकुमुल्लाहु खैरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।